پشاور میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی، 3 رکنی خطرناک راہزن گروہ گرفتار، ملزموں کے قبضے سے 37 لاکھ سے زائد نقدی مال مسروقہ اور دوران واردات استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد، ملزمان سے مزید انکشافات متوقع۔ کوٹ ڈی جی میں ڈالا اور کار میں تصادم، 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک، زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خیرپور میں منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ شوکت علی یوسف زئی نے کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کا عہدہ سنبھال لیا۔ آفس پہنچنے پر سوات لیوز کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ کمشنر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس جلد بلانے کے احکامات جاری۔ اور عوام کی دہلیز پر پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر آفس پاکپتن میں کھلی کچہری، ایڈوائزر وفاقی محتسب محمود جاوید بھٹی نے سائلین کی شکایات سنی، متعلقہ افسران کو مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ شہریوں نے وفاقی محتسب پنجاب کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کوٹ ڈی جی میں دہی سوہو اولڈ نیشنل ہائی وے پر ڈالا اور کار میں تصادم کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں پر سوار 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں خواتین اور مرد شامل ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خیرپور میں منتقل کر دیا گیا۔ دونوں زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ چکوال کے علاقے لکھوال ڈیم سے 2 روز قبل لاپتہ ہونے والے شخص کی لاش برآمد، ڈی ایچ کیو اسپتال میں منتقل کر دی گئی۔ ریسکیو 1122 کے شفٹ انچارج آصف عمران نے بتایا کہ اٹھوال گاؤں کا رہائشی 35 سالہ وقار حسین ذہنی طور پر معذور بتایا جا رہا ہے، جو 2 روز سے لاپتہ تھا، جس کی ڈیڈ باڈی نیلا روڈ سے واقع لکھوال گاؤں کے ڈیم سے ملی ہے۔ ہری پور خانپور دورہ کے مقام پر موٹر کار اور ڈمپر میں تصادم، 2 افراد شدید زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو فوری RHC اسپتال خانپور منتقل کر دیا۔ زخمیوں کا تعلق ہری پور کے نواحی گاؤں پنڈ ہاشم خان سے ہے۔ ناظرین، گجرانوالہ کے علاقے پیپلز کالونی کے علاقے میں ATM سے رقم نکلوانے کے لیے آنے والے شہری سے ڈاکوؤں کی لوٹ مار، دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو کو گرفتار فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو لاکھوں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو گجرانوالہ سے خبر دے رہے ہیں، جہاں تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں ATM سے رقم نکلوانے کے لیے آنے والے شہری سے ڈاکوؤں کی لوٹ مار، دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو لاکھوں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لاہور کے روسا بلینکا ایونٹس میں شہر رمضان فیسٹیول نے سما باندھ دیا۔ دبئی، سعودی عرب، ترکی سمیت پاکستانی پیویلینز لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ہر ملک کی ثقافت اور کھانوں کے الگ الگ انداز نے اور ذائقے نے دل جیت لیے۔ بتائیں سب کو ہم کہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ ہم آئے ہیں شہر رمضان فیسٹیول میں۔ میں نے تو اپنا پاسپورٹ لے لیا ہے۔ میرے پاس بھی میرا آپ پاسپورٹ نے ہے۔ لے لیا؟ تو کہاں چلے پھر؟ دبئی چلتے ہیں۔ دبئی چلتے ہیں؟ چلیں، دبئی چلتے ہیں۔ کیسے ہی
ऐसे लग रहा है ना कि रोजा ब्लैंका ने कितनी अच्छी एफर्ट की है कि उन्होंने दुबई लाहौर के रोसा ब्लैंका इवेंट्स में शहर रमजान फेस्टिवल ने समा बांध दिया। दुबई, सऊदी अरब, तुर्की समेत पाकिस्तानी पवेलियंस लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। हर मुल्क की सकाफत और खानों के अलग अलग अंदाज और जायके ने दिल जीत लिए। बताएं सबको हम कहाँ पे आए हुए हैं? हम आए हैं शाहराए रमजान फेस्टिवल में। मैंने तो अपना पासपोर्ट ले लिया है। मेरे पास भी मेरा आपने पासपोर्ट भी है। ले लिया है? तो कहाँ चले फिर? दुबई चलते हैं। दुबई चलते हैं। चले, चले दुबई दुबई चलते चलते हैं। कैसे इरम, ऐसे लग रहा है ना कि रोजा ब्लैंका ने कितनी अच्छी एफर्ट की है कि उन्होंने दुबई को पाकिस्तान में ले आए हैं और सबसे बढ़ के रायबन रोड लाहौर में जो हमारा प्यारा सा रोजा ब्लैंका है वहाँ पे दुबई आ चुका है। बुर्ज खलीफा देखा है आपने? बिल्कुल, मैंने तो बुर्ज खलीफा भी देखा है यहाँ पे, और साथ साथ आपको पता है और क्या क्या चीजें हैं और यहाँ क्या पे? है? दुबई के सारे खाने जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वो वाओ। टेस्ट आपको मिल रहा है, और इसके साथ साथ सूफी आपको यहाँ पे डांस भी मिलेगा और दुबई का अपना कल्चर डांस भी देखने को मिलेगा। यही नहीं, इसके अलावा आइए अभी अगले कंट्री में चलते हैं। रोजा ब्लैंका में आने के बाद आप दुबई के बाद सऊदी अरेबिया भी आ सकते हैं। पासपोर्ट होना चाहिए बस। रमजान फेस्टिवल में जब आप सऊदी अरेबिया में आएंगे तो रोजाना बड़ी खूबसूरत महफिलें मिलाद होंगी। फेस्टिवल में जब आप सऊदी अरेबिया में आएंगे तो सऊदी अरब के बड़े जबरदस्त खाने मिलेंगे आपको। मेरे साथ साथ आप सबको भी हम पाकिस्तान के पवेलियन में वेलकम करते हैं। बिल्कुल, और रोजाना आपको यहाँ खूबसूरत कवालियाँ सुनने को मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे पाकिस्तानी मजेदार खाने। आपको ये भी बताऊं कि खूबसूरत अलादीन का जो प्ले है यहाँ पे लाइव परफॉर्म होता है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। फेमस अलादीन के कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स थे आपको लाइव देखने को मिलेंगे। जैसे कि कैसे भूल सकते हैं आप अलादीन को, शहजादी को, और उसके बाद जो है जिनी को कैसे भूल सकते हैं। तो ये सारा 1 घंटे का लाइव ड्रामा यहाँ पे रमजान फेस्टिवल में हो रहा है। पेशावर सिटी डिवीजन पुलिस की अहम कार्रवाई, 3 रुकनी खतरनाक राहजन गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान असलहे के नोक पर राहजनी में मुलविस हैं। मुलजिमान ने चंद रोज कबल अफगान शहरी से 40 लाख रुपए, मोबाइल फोन और लैपटॉप छीने थे। मुलजिमान से इब्तदाई तौर पर 37,60,000 कीमती मोबाइल फोन बरामद हुए। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गई। मुलजिमान से सनसनीखेज इंकशाफात मुतवक्के हैं। मेंबर कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने फवारा चौक अटक में एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। कौम ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए खुददारी का रास्ता इख्तियार किया है। इक़्तिदार की कुर्बानी देकर सारे गद्दारों को बेनकाब कर दिया है। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने मजीद कहा कि अवाम ने इमरान खान के जलसों को कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाकर ये साबित किया है कि पाकिस्तानी एक खुददार कौम है जो मुल्की सलामती के मामले पर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। बैरूनी मुदाखलत पर कायम की गई हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान उनकी गैर मुंतखब मुशीरों ने पहुंचाया। अटक के अवाम ने आज फवारा चौक पे साबित कर दिया कि वो मेजर ग्रुप के साथ हैं। पीटीआई में मौजूद मेजर ग्रुप के मुखालिफिन को मुस्तरद कर दिया गया है। अटक के अवाम अगले इलेक्शन की तैयारी करें और इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलाने में किरदार अदा करें। इमरान खान से वफादारी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं चट्टान की तरह अपनी जमात के साथ खड़ा हूं। इमरान खान अब मुफाद परस्तों से जान छुड़वाएं और अपने साथ एक अच्छी टीम को मुंतखब करें। अवामी मुश्किलात का हल सिर्फ इमरान खान की क़यादत में मुमकिन है। ठरी मीरवा शहर की मैरिज कॉलोनी में 4 दिन पहले घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी होने का खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन अली रजा, गुलाम रजा शेर और दीगर का कहना था कि 4 रोज कबल घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गया। पुलिस को इतला देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आला हुकाम से अपील करते हैं कि मोटरसाइकिल बरामद करवाया जाए। साहिवाल में रोजा अफ्तार करने के लिए चीजों की कीमतों में इजाफा हो गया। पकोड़े, समोसे और कचौरी गरीबों की दस्तरस से बाहर हैं। मजीद जानते हैं फहीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। सारे दिन की आजमाइश, भूख प्यास के बाद रोजेदार की ख्वाहिश होती है कि अफ्तारी अच्छी मिल जाए, मगर हमारे मुल्क में अफ्तारी करना इतना आसान काम नहीं है। अफ्तारी में फल हो तो क्या बात है, मगर यहाँ फल इतने महंगे हैं कि रोजेदार जन्नत में फलों के ख्वाब देखकर ही जिंदा रहता है। गरीब आदमी की इफ्तारी में फल होना तो नामुमकिन बात है।
افطاری کی دیگر اشیاء میں سموسے جو 25 روپے کے حساب سے مل رہے ہیں، پکوڑوں کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، کچوری کا ریٹ اتنا کہ کہانی میں صرف کچوری پڑی جا سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے ملک میں اچھی افطاری کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ پوری دنیا میں ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں رمضان المبارک میں کھجور سستی ہونے کی بجائے مہنگی ہو جاتی ہے، جو پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیمرامین حمزہ کے ساتھ فہیم صدیقی۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید اللہ والی چورنگی پر مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے حوالے سے اجتماع تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں انور مگسی کی رپورٹ میں۔ پاکستان رینجر سندھ کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے مناسبت سے کراچی کے علاقے گلشن حدید اللہ والی چورنگی میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اجتماع میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور دینی شخصیات، سول انتظامیہ اور رینجرز کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ اجتماع کا بنیادی مقصد مذہبی میں ہم آہنگی، امن اور اتحاد کو فروغ دینا ہے اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا ہے۔ علماء نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے مذہبی کے درمیان مسلم بھائی چارے کی تبلیغ اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پاکستان رینجر سندھ کے کردار کو خوب سراہا۔ ملک قوم کی ترقی خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ انور راولپنڈی انتظامیہ کی ہدایت پر مینیجنگ ڈائریکٹر واسا راجہ شوکت کی سربراہی میں انسداد ڈینگی کا دن منایا گیا۔ ڈینگی آگاہی واک شرکاء میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے حمید عباسی کی رپورٹ میں۔ انتظامیہ کی ہدایت پر واسا راولپنڈی نے ایم ڈی واسا راجہ شوکت کی سربراہی میں انسداد ڈینگی کا دن منایا، جس میں ڈینگی آگاہی واک کی گئی اور شرکاء میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ واک میں مینیجنگ ڈائریکٹر واسا راجہ شوکت محمود کے ساتھ واسا افسران اور ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا راجہ شوکت محمود نے کہا کہ ڈینگی ڈے منانے کا بنیادی مقصد اس موذی وبا سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے اور اس سے بچاؤ کی تدابیر اور حکومتی اقدامات سے عام لوگوں کو روشناس کروانا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھروں اور گلی محلوں کی صفائی کا خیال خود نہیں رکھیں گے، اس موذی وبا سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا راجہ شوکت محمود نے ڈینگی واک کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واسا راولپنڈی انسداد ڈینگی مہم میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور اس موذی وبا سے چھٹکارا تک تمام محکمہ بالخصوص انتظامیہ اور محکمہ سے شانہ بشانہ کام کرتا رہے گا۔ ایم ڈی واسا راجہ شوکت محمود کا یہ بھی کہنا تھا کہ واسا نے راول ٹون اور پٹوار ٹون میں 7 انسدادی ڈینگی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے اپنے علاقوں میں انسداد ڈینگی کے خلاف اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ واسا محکمہ صحت کی گھر گھر سرویلنس کرنے والی ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ جہاں بھی لاروا کی نشاندہی ہوتی ہے، اس گھر میں فوری طور پر واٹر ٹینکر سے صاف پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے تاکہ جس پانی میں لاروا کی نشاندہی ہوئی ہے اسے فوری طور پر تلف کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ وہ تمام اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں، اپنے گھروں، محلوں اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں اور ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کریں تاکہ اس موذی وبا سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب آپ کو بتائیں کہ کمشنر ساہیوال اور ڈیپٹی کمشنر اوکاڑا کا سستا رمضان بازار اور گندم سینٹر انالہ خرد کا دورہ۔ سستے رمضان بازار میں چینی، آٹا، سبزی، پھل کے ریٹ چیک کیے۔ اس موقع پر کمشنر ساہیوال کا کہنا تھا کہ حکومت کی ہدایت پر عام مارکیٹ میں بھی قیمتوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ گندم سینٹر کے دورے کے دوران انہوں نے سٹاک کے حوالے سے معلومات لیں اور بہترین انتظامات پر عملے کو شاباش دی۔ دوسری طرف سستا رمضان بازار کے دورے کے دوران مختلف سٹالز پر اشیاء کی قیمتوں اور معیار کو چیک بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر آٹے کے تھیلے پر 100 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، جبکہ فیئر پرائس شاپ پر تمام اشیاء کا ریٹ مارکیٹ سے 25 سے 30% کم ہے۔ سستا رمضان بازار کے انتظامات کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کے کردار کو سراہا گیا۔ شوکت علی یوسف زئی نے کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کی حیثیت سے عہدہ سنبھال لیا۔ آفس پہنچنے پر سوات لیوز کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی۔ کمشنر آفس کی طرف سے انہیں بریفنگ بھی دی گئی۔ کمشنر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور فردن کمشنر آفس سٹاف سے ملے۔ مقامی افراد کی بھی کمشنر آفس میں رخ کیا اور کمشنر سے ملاقاتیں کی۔ بحیثیت کمشنر مالاکنڈ ڈویژن اپنے پہلے روز انہوں نے سٹاف سے بریفنگ لی اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے
इजलास जल्द बुलाने के अहकाम जारी किए। शौकत अली यूसुफजई इससे पहले कमिश्नर बन्नू डिवीजन तैनात थे। कंजुल ईमान ग्रामर स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम मिली नगमे पेश किए, जिन्हें तलबा के वालिदैन ने खूब सराहा। अब्दुल वहाब अत्तारी और मोहम्मद जमील भट्ट ने खिताब में कहा कि मुल्क में जहालत का खात्मा तालीम से ही मुमकिन है। निजी तालीमी इदारों की कोशिश की बदौलत मुल्क में मयार तालीम तेजी से बुलंद हो रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा नजर आएगा। तालीम याफ्ता कौम ही खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देना कंजुल ईमान ग्रामर स्कूल का खासा है। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ तालिबे इल्मों की बेहतरी कारकर्दगी असातिज़ा और इदारे की नेक नामी का बायस है। तकरीब में दावत इस्लामी पाकिस्तान शोबा तालीम के निगरान अब्दुल वहाब अत्तारी, मोहम्मद जमील भट्ट, डायरेक्टर अवैस जमील भट्ट, सैयद एजाज शाह, मोहम्मद आसिम अत्तारी, मोहम्मद उस्मान अत्तारी, मोहम्मद इमरान अत्तारी, राजा शहबाज अहमद, मोहम्मद हमाद भट्ट, मरियम अवैस, अदनान अवैस, लारेब और दीगर ने शिरकत की। शहर कायद में पुलिस की दबंग कार्रवाई जारी। टिम्बर मार्केट के ताजिर ताहिर सरबाजी की गोलियां मारने वाले मुल्जिमान 24 घंटों में पुलिस की गिरफ्त में। एडिशनल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से SHO और उनकी टीम को नकद इनाम और तारीफी इसनाद पेश की। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। पुलिस की दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। टिम्बर मार्केट के ताजिर ताहिर सरबाजी को गोलियां मारने वाले कानून की गिरफ्त में। पुलिस की जानिब से शानदार कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में मुल्ज़मान कानून के शिकंजे में। SHO निपेर जाहिद कोहारो और उनकी टीम को एडिशनल आईजी सिंध टिम्बर मार्केट के सदर शर्जील गोपलानी की जानिब से तारीखी असनाद और कैश इनाम दिया गया। इनकी मेहनत और लगन से ड्यूटी सर अंजाम देने पर शाबाश दी। SHO निपेर जाहिद कोहारो का कहना था कि 3 अफराद इस कार्रवाई में मुलविस थे, जबकि मुलजिम अख्तर जमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। अख्तर जमान की निशानदेही पर 2 मुल्जिमान फराज और मुनव्वर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR नंबर 85 थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब कॉलेज ओकाड़ा कैंपस की तरफ से महफिल हुस्न नात के मुकाबले डायरेक्टर कॉलेज ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। मजीद जानते हैं आदिल उकाड़ा कैंपस में। पंजाब कॉलेज उकाड़ा कैंपस की जानिब से माह रमजानुल मुबारक में तुलबा और तालबात में महफिल हुस्न नात के मुकाबले के हवाले से पुरनूर महफिल का इनाकाद किया गया, जिसमें इरफानुल हक डायरेक्टर पंजाब कॉलेज, सलीम ताहिर प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज उकाड़ा कैंपस और इनके 7 प्रोफेसर्स और तुलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ सेक्शन के स्टूडेंट ने महफिल हुस्न नात में हिस्सा लिया। महफिल का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। बाज़ तमाम बच्चों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया अकीदत पेश किया और ऐसी दिलकश आवाज में नाते रसूल मकबूल अदा की कि हाज़रीन महफिल के कल्ब को रोशन कर दिया। हर जुबान सुबहान अल्लाह की सदाएं गूंजती रही। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज इरफानुल हक ने महफिल के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आकाए दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ाने के लिए नात गोई बेहतरीन जरिया है। इस पुरनूर महफिल में हुजूर की शान अक़दस बयान करने पर प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज सलीम ताहिर के लब भी खामोश न रह सके। आपका कहना है कि आज पंजाब कॉलेज के बच्चों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात ख्वानी की तो दिल झूम उठा। प्रिंसिपल की जानिब से पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालबात की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी दिए गए। महफिल हुस्न नात के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की। ठरी मीरवा में ज़रई ज़मीनों ने पानी ना मिलने के खिलाफ काश्तकारों का नाका चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी की किल्लत के बायस 4 माह से हमारी ज़मीन बंजर बन चुकी है, जबकि पानी की किल्लत के बायस नई फसल भी काश्त नहीं की जा रही। आला हुकाम से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी ज़रई ज़मीनों को पानी फराहम किया जा सके ताकि बरवक्त नई फसल काश्त की जा सके।
तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर मुमलिकत फरूख हबीब, मरकजी रहनुमा ताहिर मलिक की फैसल ईदी से मुलाकात, उनकी वालिदा बिल्किस ईदी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, मरहुमा की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। मजीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल साबिक वजीर मुमलिकत फरूख हबीब, मरकजी रहनुमा ताहिर मलिक की फैसल ईदी से इनकी वालिदा बिल्किस ईदी के इंतकाल पर ताज़ियत। दोनों रहनुमाओं ने बिल्किस ईदी की मग़फ़िरत के लिए दुआ की, उनकी खिदमात को सराहा। फरूख हबीब का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी बिल्किस ईदी की दुखी इंसानियत के लिए खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं, वो हमेशा दुखी इंसानियत का सहारा बने। ताहिर मलिक का कहना था कि ईदी खानदान की मुल्की खिदमात पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईदी फाउंडेशन ने जिस तरह दुखी इंसानियत की हर शोबे में खिदमत की, इसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। आज बिल्किस ईदी के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है वो पुर होना मुश्किल है। रोज बिल्डर का अहसन इकदाम, सैकड़ों रोजादारों के लिए इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। तफसीलात रावलपिंडी से सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में। रोज बिल्डर की जानिब से माह रमजान में गोला मोड़ और सदर पहुंच हाउस के बाहर रोजाना सैकड़ों अफराद के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। इस हवाले से रोज बिल्डर के CEO मलक बाबर ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। जी मेरा नाम मलिक बाबर है जी, रोज़ बिल्डर से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हर साल की तरह हम लोग भी रमज़ान शरीफ बनाए, यहाँ पे इफ्तारियाँ करवा रहे हैं, लोगों से जो दुआएं ले रहे हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए सारे काम कर रहे हैं। आज से 10 साल से हम लोग कर रहे हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। नहीं हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऑन पे करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं मलिक उमर साहब, तो वही सारा कुछ ऑन करते हैं। हमारा किसी किस्म कोई चैरिटी नहीं होती, किसी किस्म का कुछ भी नहीं होता, हम सब कुछ अपने ऑन पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बॉक्स कभी अपने काउंट तो नहीं कि कितने होते हैं, लेकिन ये कम से कम 250-300 बंदा डेली हो जाता है माशाल्लाह। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सजाद हैदर, KR न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान स्टील मिल के साबिक मजदूर रहनुमा मोहम्मद अफजल चांडियों के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मलिर प्रेस क्लब कराची के सदर और सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा चांडियों से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत, मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। तफसीलात कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बन्नू कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर खान नियाजी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर खान ने दूसरा ऑल पाकिस्तान काजी मुहिब मेमोरियल फ्लड लाइट हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर से टीमों ने हिस्सा ले रही हैं। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। ये टूर्नामेंट डिप्टी कमिश्नर बन्नू की तरफ से जिले स्पोर्ट्स ऑफिसर बन्नू और खादिम हॉकी ग्रुप बन्नू के जरिए मुनक्किद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से बेहतरीन टीमें और बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट का हर मैच रोजाना 10 बजे शुरू होगा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे की तकमील के लिए सेहतमंद दिमाग होना जरूरी है, जो सिर्फ खेलों को फरोग से ही मुमकिन है। अगर नौजवान नस्ल को खेलों के अच्छे मौके और माहौल दिया जाए तो न सिर्फ वो अच्छे शहरी बन सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का सरमाया होते हैं और एक अच्छा खिलाड़ी नौजवान नस्ल के लिए मिसाल होता है, जिसे मुतासिर होकर बहुत से नौजवान बुरी सोहबत से सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब होते हैं। फिदा मोहम्मद, कोहिनूर न्यूज़, बन। FKR फाउंडेशन की तरफ से पहला नाइट टेबल बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। समझौर क्रिकेट क्लब ने फाइनल जीत लिया। मजीद जानते हैं खिपरू से अब्दुल रजाक राजपूत की रिपोर्ट में। डिग्री कॉलेज ग्राउंड पर FKR फाउंडेशन की जानिब से पहला नाइट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया, जिसमें जिले सांगड़ के मुख्तलिफ शहरों से 12 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट 4 रोज जारी रहा। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ शहरों की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुकाबले हुए। इनमें से जानबाज क्लब सांगड़ और आफरीदी लवर्स क्लब सिंजोरो ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला गया, जिसमें दिलचस्प मुकाबले के बाद आफरीदी लवर्स क्लब सिंजोरो ने टूर्नामेंट अपने नाम
सलाम किया और फतह का सेहरा अपने सर सजाया। इस मौके पर इफ्तियार फाउंडेशन के चेयरमैन काजी फरहान खान राजड़, GDA के MPA काजी समझदीन राजड़ और देगर ने फाइनल जीतने वाली टीम को एक मोटर बाइक, ट्रॉफी और नगद इनाम से नवाजा, जबकि हारने वाली टीम को नगद इनाम और ट्रॉफी दी गई। टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों को नगद इनाम और ट्रॉफियों से नवाजा गया। देखें, FKR फाउंडेशन जो है वो हमेशा सांगड़ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ हो, बिलखुसूस तालका खिपर हो, उसकी हमेशा खिदमत की आवाम की, और यही सोच के हमने यही सोचा कि आवाम की हम खिदमत करें और नौजवानों को ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसमें वो पार्टिसिपेट करें, और ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये एक मुनज़्ज़म माशरे और तंदुरुस्त माशरे की निशानी होती है। खेलों के हवाले से जो हो रहे हैं टूर्नामेंट वगैरह, ये अच्छी एक्टिविटी है, इंशाल्लाह और भी इसे होती रहेंगी, इंशाल्लाह जो भी हमसे होगा इनकरेज करते रहेंगे। सर में होनी चाहिए ताकि लोगों की मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बेहतर रहे। टूर्नामेंट में काजी करीम राजड़, काजी मुजतबा राजड़, काजी जिशान राजड़, काजी शोएब राजड़ समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी लोगों समेत क्रिकेट के शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड पर मौजूद थी। कैमरामैन फजल उमरानी के साथ। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद में बैसाखी मेला मनाया जा रहा है। सैकड़ों सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा करने के लिए पाकिस्तान आमद की है। इस मौके पर इंतजामिया की तरफ से यात्रियों की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। इस मौके पर सिख यात्रियों और DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार का गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सेक्रेटरी राना शाहिद, वैकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जितने भी हमारे ये जो सिख जितने भी हमारी संगत है, इनके जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ये विसाखी जो इवेंट है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही अहम किस्म का इवेंट है सिख धर्म में। और इसकी जो यहाँ पे पाकिस्तान में शुरुआत होती हैं वो पंजा साहब से होती हैं, जो कि अभी हमारा जो प्रोग्राम था वो 12 से 21 अप्रैल तक है, और इसका मेन जो फंक्शन था वो 14 तारीख को वहाँ पे पंजा साहब हसनदार में हो चुका है। इसके बाद जो हमारे जितने भी सिख भाई हैं जो पाकिस्तान के तूल वरस से आए हैं या इंडिया से आए हैं या बाकी जो मुख्तलिफ ममालिक से, कनाडा से, यूरोपियन कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से आए हैं, ये सारे के सारे आज अपनी जो है ये तीसरी जगह है जहाँ पे ये यात्रा के लिए तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे सच्चा सौदा में आपको पता है कि यहाँ से इनके सिख धर्म का जो है वो आगाज़ हुआ था, और यहाँ पे इसलिए ये इनके लिए एक बहुत ही मजहबी मकाम जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके बाद इन्होंने ननकाना साहब जाना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बैसाखी फेस्टिवल के हवाले से सिख यात्री जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कोई 1800 के करीब सिख यात्री जो है वो यहाँ आए हैं। इनकी सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले तो जो इनको रूट था जो ननकाना साहब से यहाँ शेखुपुरा तक इनको बॉक्स फॉर्मेशन में लेकर आए। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने 3 लेयर्स में सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है। इनर कार्डन, आउटर कार्डन और आउटर मोस्ट कार्डन के अलावा हमने छतों पर ड्यूटी भी लगाई है और रास्ते में भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके बाद इनको चेकिंग करके इस गुरुद्वारा में आने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच की टीमें जो हैं वो सर्च एंड स्वीपिंग जो ऑपरेशन जो हैं वो कर रही हैं। CCTV कैमरा की मदद से भी सर्वेलेंस जारी है। इस तमाम ड्यूटी पर तकरीबन हमारे 800 से ज़्यादा। भोंग के नवाही इलाके बस्ती जमाल खान और बस्ती नियाज अहमद में तेज आंधी के बायस आग भड़क उठी। घरेलू सामान और गंदम जलकर राख का ढेर बन गई। कीमती जानवर भी हलाक हो गए। इलाका मकीनों ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से माली इमदाद की अपील की है। फरीदाबाद के नवाही गांव पकेड़ा माची में आंधी के दौरान आतिशज़दगी आग ने 50 घरों को लपेट में ले लिया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी से घरेलू सामान, गंदम और कीमती जानवर जलकर खाकस्तर हो गए। मुतासरीन ने आला हुकाम से माली इमदाद करने की अपील की है। बल्दिया हॉल रेनाला खुर्द से स्पेशल एजुकेशन स्कूल तक कारपेट रोड की तामीर जारी, 50% काम मुकम्मल। इंजीनियर आजम भट्टी ने अपनी मदद आप के तहत काम शुरू करवा रखा है। मजीद जानते हैं चौधरी इमरान की रिपोर्ट में।
बल्दिया हाल रिनाला खुद से लेकर स्पेशल एजुकेशन स्कूल तक तमाम रोड खस्ता हाली का शिकार जगह जगह गड़े पड़े हुए थे। इंजीनियर आजम भट्टी ने इस रोड को कारपेट रोड बनाने का हुक्म जारी कर दिया। अपनी मदद आपके तहत इंजीनियर आजम भट्टी ने रोड की अरसरों तमीर का हुक्म कर दिया और इफ्तिताह भी कर दिया। रोड पर 50% काम मुकम्मल हो गया है, बाकी 50% काम भी आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। रोड की इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफती, उलमा कराम और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंजीनियर आजम भट्टी का फूलों के गुलदस्तों और माला पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इंजीनियर आजम भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मखलूक खुदा की खिदमत करने से अल्लाह ताला राजी होता है। कई हुकूमतें आईं और कई चली गईं। इसी रोड पर वापडा ऑफिस, स्पेशल एजुकेशन स्कूल, फौजी फाउंडेशन स्कूल और पास्को गोदाम भी वाक़या है, लेकिन हुकूमत की नाअहली की वजह से रोड तमीर ना हो सका। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सहवन शरीफ के नवाही इलाके भान सैयदाबाद में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। शहरी पानी के बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। पानी की किल्लत के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। शहरी पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि शहर में 2 माह से पीने के पानी की शदीद किल्लत है, लेकिन इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि भान सैयदाबाद शहर में पीने का मसला हल करके शहरियों की इस माह मुक़द्दस में परेशानियों से बचाया जाए। गुजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी के ग्राइंडिंग यूनिट पर छापे। कार्रवाई के दौरान 100 किलो नाकिस बेसन जब्त, सैकड़ों पैकेट गुटखा भी तल्फ कर दिया गया। इस दौरान गैर मयारी स्टोरेज रिकॉर्ड और मुलाजमीन के मेडिकल्स की अदम दस्तियाबी पाई गई। जीडी फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना है कि डिवीजन में 58 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। हफ्जाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 10 फूड पॉइंट्स को जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। सजावल पुलिस की रात गई कामयाब कार्रवाई। एसएचओ थाना सजावल अयाज हुसैन मेमन ने सुजुकी पिकअप पुलिस मुकाबले के दौरान बरामद कर ली। मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कार्रवाई जारी है। डीपीओ जहलुम राना ताहिर ने थानों से पर्ची सिस्टम सिफारिश के खात्मे के लिए स्पेशल इनिशिएटिव ले लिया। पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए डेस्क कायम कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं एहसान जंजुआ की रिपोर्ट में। डीपीओ जहलुम राना ताहिर ने थानों से पर्ची सिस्टम सिफारिश और टाउट कल्चर के खात्मे के लिए स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां पर आने वाले साइलिन को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता डेस्क कायम किए गए हैं। आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरियों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए थाना सिविल लाइन में स्पेशल इनिशिएटिव का डेस्क का बाकायदा इफ्तिताह डीपीओ जहलुम राना ताहिर ने किया। स्पेशल डेस्क के क़याम का मकसद आने वाले साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। तीसरा पुलिस स्टेशन था, इससे पहले हमारे पास दीना और चौटाला अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज सिविल लाइन्स भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं हमारी, उसमें सॉफ्ट इंटरवेंशंस भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है इनपुट्स भी हैं। अब उसमें अगर हम इसको ब्रॉडर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहें तो वो ये है कि इसमें जो पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ शिकायत रहती कि जी रवैया अच्छा नहीं है, उसको दूर कर दिया गया है। इसमें डायरेक्ट एक्सेस जो है वो कंप्लेनेंट की वो हमारे फ्रंट डेस्क के साथ कर दी है। जहलुम में फ्रंट डेस्क का क़याम बिलाशुबा पुलिस की जानिब से एक ऐसा इक़दाम है जिससे न सिर्फ आने वाले सालीन की दाद रसी होगी और आवाम को जो पुलिस से शिकायत हैं उन पर भी फौरी अमल दरामद होगा। डीपीओ जहलुम की जानिब से फ्रंट डेस्क के क़याम को शहरियों ने सराहा। कैमरा टीम कैमरा एहसान जंजुआ, कोहिनूर न्यूज़, जहलुम। डीपीओ शहजादा उमर अब्बास बाबर की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया। तफसीलात लकी मरवत से शरीफुल्लाह की इस रिपोर्ट में।
लकी मरवत DPO शहजादा उमर अब्बास बाबर की सदारत में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी के हवाले से SDPOs और तमाम इंचार्ज चौकियात के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जिली पुलिस सरबराह शहजादा उमर अब्बास बाबर की सदारत में लकी और नवरंग सर्कल के SDPOs और जिला भर के इंचार्ज चौकियात की शिरकत। DPO ने तमाम चौकियात पुलिस की कार्रवाइयों और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया और इनको जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने और अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। जिले में स्नीप चेकिंग को मजीद मौसर बनाने, मीटिंग में हालिया थ्रेट्स अलर्ट, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तफसीली बहस की गई। इस DPOs को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर चौकियात और नाकाबंदी पॉइंट्स की सिक्योरिटी चेक करे। DPO शहजादा उमर अब्बास बाबर ने इंचार्ज चौकियात को मजीद अहकामात जारी देते हुए कहा कि तमाम पुलिस एहलकारान ड्यूटी अंजाम देते वक्त हेलमेट जैकेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाए और दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करने से गुरेज करे। चेक पॉइंट्स पर चौकस खड़े रहें और ड्यूटी में कोई कोताही ना करे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या रुनुमा ना हो। जबकि ज़िले के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने की अहकामात जारी किया गया ताकि जराइम पेशा अफराद नकलो और हरकत पर कड़ी नज़र रखी जा सके। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर न्यूज़। अब आपको बताएं कि इंसाफ आवाम की दहलीज पर प्रोग्राम के तहत एडवाइज़र वफाकी मोहतसिब मुल्तान महमूद जावेद भट्टी की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पाकपतन में खुली कचहरी। वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान की हिदायत पर लगाई गई खुली कचहरी में एडवाइज़र वफाकी मोहतसिब महमूद जावेद भट्टी ने सालिम की वापडा, सुई गैस, नादरा, हाईवे समेत दीगर वफाकी महकमों से मुतल्लिक शिकायत सुनी और इनके फौरी अजाले के लिए मौके पर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। शहरियों ने वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान के इस इक़दाम को खूब सराहा। उनका कहना था कि खुली कचहरियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहना चाहिए। नवाब शाह में गुलिस्तान बाहू वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल शहीद बेनज़ीराबाद की तरफ से मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। साहबजादा पीर सखी खालिद सुल्तान बाहू और अलकादरी ने राशन तकसीम किया। मरकजी चीफ मोहम्मद अशरफ आराई सुल्तानी का ट्रस्ट की मुआवनत करने वाले मुखय्यर हजरात को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मेहमानान ने खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अशरफ आराई सुल्तानी, सलामत अली सुल्तानी, एडवोकेट अमजद अली आराई थे। शांगला में फलाही तंजीम शहतूत एमन फाउंडेशन की तरफ से दर्जनों मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। आटा, घी और दालें हासिल करने वालों ने फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला में फलाही तंजीम शहतूत अमन फाउंडेशन की जानिब से दर्जनों मुस्तहिक खानदानों, बेवाओं, यतीमों, माजूरों और गरीबों के दरमियान रमजान फ्री राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। रमज़ान फ्री राशन पैकेजेस में आटा, दालें और घी वगैरह शामिल थे। रमज़ान फ्री राशन पैकेजेस से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद ने शहतूत अमन फाउंडेशन के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में हमारे साथ माली मुआविनत की गई और हमारे बच्चों का ख्याल रखा गया। शहतूत अमन फाउंडेशन के उहदेदारान का कहना था कि ये तंजीम हर सही दराज से सोशल और पब्लिक सेक्टर पर दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। हमारा स्लोगन गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों की मदद करना है। तंजीमी उहदेदारान ने इस अज़म का इआदा किया कि माजी की तरह मुस्तक़बिल में भी बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के नाज़रीन, अलखिदमत का यतीम बच्चों के लिए किया जाने वाला काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीमों के आलमी दिन पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात बन्नू से फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। मुनक्किदा प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर मीर अली सब डिवीज़न शाहिद रफ़ीक, नायब सदर तंजीम असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा असल जान, अलखिदमत फाउंडेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के सदर असदुल्ला शाह और खैबर पख्तूनख्वा अरफिन प्रोग्राम शुमाली वज़ीरिस्तान के इंचार्ज मोहम्मद काशिफ दावड़ और मौलाना रहमान नूर जलाली ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर मेलरी सब डिवीज़न शाहिद रफ़ीक व दीगर ने अलखिदमत फाउंडेशन की खिदमात को सराहा और कहा कि ये आज भी खुशी का दिन है कि अलखिदमत फाउंडेशन यतीमों का दिन मना रही है। पाकिस्तान और बिलखुसूस दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और ख़ासकर शुमाली वज़ीरिस्तान में यतीम अकेले नहीं बल्कि अलखिदमत फाउंडेशन इनके साथ खड़ी है।
प्रोग्राम के अख्तिताम पर अलखिदमत फाउंडेशन शिमाली वजीरिस्तान के सदर असदुल्ला और अरफिन प्रोग्राम के इंचार्ज मोहम्मद काशिफ ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मुख्तसर कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन हर दुख और दर्द में अवाम के साथ बराबर की शरीक है। अलखिदमत फाउंडेशन इस वक्त एक दुख दर्द और इंसानियत का नाम है। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 46 लाख से ज़ायद यतीम बच्चे हैं जिनकी तालीम और तरबियत और कफालत हम सब की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में 128 सवाबी के निजी तालीमी इदारे में तकरीब तकसीम इनामात, तलबा ने तकारीर करके शुरका से खूब दाद हासिल की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सवाबी में निजी तालीमी इदारे में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने हमद, नात, मिली नगमे और तकारीर पेश करके खूब दाद हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एनुअल एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लिया है अपने क्लास में। पोजीशन लेने वाले तलबा ने अपनी कामयाबी को अपनी रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मैलसी में ज़ेरे तारीम मुल्तान रोड पर पानी का छिड़काव न करने पर शहर मट्टी के गर्दो गुबार की जद में आ गया। माहौल आलूदा, आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी आंख, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीन ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों के लिए सड़क की तामीर मुफाद की बजाय दर्द सर बन गई। मुतअद्दिद तालीमी इदारे इसी इलाके में वाक़े हैं, जिससे तलबा और तालिबात को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने DC विहाड़ी से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मतवालों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाई तकसीम, आतिशबाजी भी की। मजीद जानते हैं टंडू आदम से फारूक आजम मुगल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम टंडू आदम में भी शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में नून लीग के कारकुनान सड़कों पर निकल आए और शहर के मुख्तलिफ शाहरों पर खुशी में जश्न मनाते हुए ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और आतिशबाजी। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टंडू आदम के ज़ेर एहतमाम कारकुनान की कसीर तादाद ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में ज़ेर क़यादत नून लीग ज़िले सदर अनवर खान मरी, मज़ार खान मरी, मोहम्मद हुसैन अराई, चौधरी मोहम्मद नोमान अराई की क़यादत में टंडू आदम प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मां उम्मीद कई था त असांजे कायद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थियो है, जीअं हुन पंजाब जी ख़िदमत की, ईअं हू चइनी सूबनि जी ख़िदमत कंदो ऐं सिंध खे बि ख़ुशहाल कंदो ऐं सिंध जे लाइ भलाई लाइ कमु कंदो। इंशाअल्लाह उहो ॾींहुं नाजरीन, शहर कायद में पुलिस की दबंग कार्रवाइयां जारी। टिम्बर मार्केट के ताजिर ताहिर सरबाजी को गोलियां मारने वाले मुल्जिमान 24 घंटों में पुलिस की गिरफ्त में। एडिशनल IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से SHO और उनकी टीम को नकद इनामात और तारीफी इस्नाद पेश की। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। पुलिस की दबंग कार्रवाइयां जारी हैं। टिम्बर मार्केट के ताजिर ताहिर सरबाजी को गोलियां मारने वाले कानून की गिरफ्त में। पुलिस की जानिब से शानदार कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में मुल्ज़मान कानून के शिकंजे में। SHO निपेर जाहिद कोहारो और उनकी टीम को एडिशनल IG सिंध टिम्बर मार्केट के सदर शर्जील गोपलानी की जानिब से तारीखी असनाद और कैश इनाम दिया गया। इनकी मेहनत और लगन से ड्यूटी सर अंजाम देने पर शाबाश दी। SHO निपेर जाहिद कोहारो का कहना था कि 3 अफराद इस कार्रवाई में मुलविस थे, जबकि मुलजिम अख्तर जमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। अख्तर जमान की निशानदेही पर 2 मुलजिमान फराज और मुनव्वर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
FIR नंबर 85 थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरशद महमूद मुगल। लाहौर के रोसा ब्लैंका यूनाइटेड इवेंट्स में शहर रमजान फेस्टिवल ने समा बांध दिया। दुबई, सऊदी अरब, तुर्की समेत पाकिस्तानी पवेलियंस लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। हर मुल्क की सकाफत और खानों के अलग अलग अंदाज और जायके ने दिल जीत लिए। बताएं सबको हम कहाँ पे आए हुए हैं? हम आए हैं शाहरे रमजान फेस्टिवल में। मैंने तो अपना पासपोर्ट ले लिया है। मेरे पास भी मेरा पासपोर्ट आपने भी ले लिया? तो कहाँ चले फिर? दुबई चलते हैं। दुबई चलते हैं? चले दुबई चलते चलते हैं। जैसे ही ऐसे लग रहा है ना कि रोजा ब्लैंका ने कितनी अच्छी एफर्ट की है कि उन्होंने दुबई को पाकिस्तान में ले आए हैं, और सबसे बढ़ के रायवन रोड लाहौर में जो हमारा प्यारा सा रोजा ब्लैंका है वहाँ पे दुबई आ चुका है। बुर्ज खलीफा देखा है आपने? बिल्कुल, मैंने तो बुर्ज खलीफा भी देखा है यहाँ पे, और साथ साथ आपको पता है और क्या क्या चीजें हैं? और क्या है? दुबई के सारे खाने जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वो टेस्ट आपको मिल रहा है, और इसके साथ साथ सूफी आपको यहाँ पे डांस भी मिलेगा, और दुबई का अपना कल्चर डांस भी देखने को मिलेगा। यही नहीं, इसके अलावा आइए अभी अगले कंट्री में चलते हैं। रोजा ब्लैंका में आने के बाद आप दुबई के बाद सऊदी अरेबिया भी आ सकते हैं। पासपोर्ट होना चाहिए बस। रमजान फेस्टिवल में जब आप सऊदी अरेबिया में आएंगे तो रोजाना बड़ी खूबसूरत महफिलें मिलाप फेस्टिवल में जब आप सऊदी अरेबिया में आएंगे तो सऊदी अरब के बड़े जबरदस्त खाने मिलेंगे आप। मेरे साथ साथ आप सबको भी हम पाकिस्तान के पवेलियन में वेलकम करते हैं। बिल्कुल, और रोजाना आपको यहाँ खूबसूरत कवालियाँ सुनने को मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे पाकिस्तानी मजेदार खाने। आपको ये भी बताऊं कि खूबसूरत अलादीन का जो प्ले है यहाँ पे लाइव परफॉर्म होता है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। फेमस अलादीन के कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स थे आपको लाइव देखने को मिलेंगे। जैसे कि कैसे भूल सकते हैं आप अलादीन को, शहजादी को, और उसके बाद जो है जिनी को कैसे भूल सकते हैं। तो ये सारा 1 घंटे का लाइव ड्रामा यहाँ पे रमजान फेस्टिवल में हो रहा है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।